Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel VMB Tutorial. So in last session we have discussed question number 1 to question number 3 of exercise 9.2, and in today's session we are going to discuss next further question of same exercise. Okay, so let's start it. Now question number 4 is, in figure P is a point in the interior of a parallelogram ABCD. Show that the first part, area of triangle APB plus area of triangle PCD is equals to half of area of ABCD, and the second part which we have to show here, area of triangle APD plus area of triangle PBC is equals to area of triangle APB plus area of triangle PCD. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके इंटीरियर में एक पॉइंट P है। जब इस P पॉइंट को 4 वर्टिसेस से ज्वाइन किया गया तो यहाँ 4 ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या शो करना है कि इस ट्राइंगल APB मीन्स इस ट्राइंगल की बात हो रही है, APB एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PCD और CPD is half of the area of this parallelogram ABCD. Okay, so let's see how to do it. Area of triangle APB, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस P पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो CD और AB के पैरेलल होगी। और इसको नेम दे दीजिए सपोज EF। सो फर्स्ट पार्ट के लिए ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू AB एंड CD। ओके, EF एक लाइन P से पास होते हुए ड्रॉ की है जो AB के पैरेलल है। AB ऑलरेडी CD के पैरेलल है, मीन्स ये लाइन इन दोनों ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल है। ओके, सो EF AB के पैरेलल है तो AEFB क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि एक पेयर ऑपोजिट साइड का क्या है, क्योंकि यहाँ ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या है, पैरेलल है। देखिए AE इज पैरेलल टू BF, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये साइड तो ऑलरेडी आपका पैरेलल है और EF आपने AB के पैरेलल ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये ABFE आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में ट्राइंगल है APB, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और ये पैरेललोग्राम और ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच में है, इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम AEFB। ओके, सो since EF is parallel to AB, so ABFE is a parallelogram. Okay, ABFE is a parallelogram, and since triangle APB and parallelogram AEFB are on the same base, so same base AB and between same parallels AB and EF. So area of triangle APB is equals to half of area of parallelogram AEFB. ओके, AEFB। क्यों,
क्योंकि AEF भी आपका पैरेललोग्राम है और APB आपका ट्राइंगल है और दोनों का बेस क्या है, सेम है। मीन्स ट्राइंगल एंड दिस पैरेललोग्राम are on the same base AB and between the same parallels AB and EF. So the area of this triangle will be the half of area of this parallelogram AEFB. Okay, name this as equation number 1. Now since EF is parallel to CD, so EFCD is a parallelogram. ओके, EFCD क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम. हाँ, सिंस ट्राइंगल PDC एंड पैरेललोग्राम EFCD are on the same base CD and between same parallels EF and CD. So area of triangle PDC or CPD, area of triangle CPD is half of area of parallelogram EFCD. Name this as equation number 2. Now add these two equations. On adding equation 1 and 2, what we are getting? Area of APB plus area of triangle CPD is equals to half of area of parallelogram AEFB plus half of area of parallelogram EFCD. Okay, so take this half as common. So area of parallelogram AEFB plus area of parallelogram EFCD. See, अगर इस पैरेललोग्राम AEFB एंड EFCD के एरिया को हम ऐड कर दें तो ये दोनों मिलकर कौन सा एरिया फॉर्म कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. So in place of this addition we can write half of area of parallelogram ABCD. Okay, so first part we have area of APB plus area of CPD is equals to half of area of ABCD. So this we have shown here. Now to show the second part, area of APD plus area of PBC is equals to area of APB plus area of CPD. ओके, एरिया ऑफ APD, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC मीन्स इन दो ट्राइंगल्स की एरिया का सम है यहाँ पर, और वो किसके इक्वल है, जो फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है. ओके, तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट P पैरेलल टू साइड AD एंड BC. सपोज इट्स नेम इज GH. Okay,
फर्स्ट पार्ट में हमें शो करने के लिए हमने पी से पास होते हुए एक लाइन ई एफ ड्रॉ की थी जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल थी। अब पी से पास होते हुए एक लाइन जी एच ड्रॉ करनी है जो ए डी और बी सी के पैरेलल है। ओके, सो ड्रॉ जी एच पैरेलल टू ए डी as well as BC. Okay, so since AD is parallel to GH and BC is parallel to GH, so AGHD and BGHC are parallelogram ओके। GH AD के पैरेलल है और ये DH और AG आर द पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, तो ये ऑलरेडी आपके पैरेलल हैं, तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई, इन दोनों ही क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। सो AGHD and BGHC are parallelogram. Okay, now ट्राइंगल, इसकी बात कर रहे हैं, इस हाफ पार्ट की। ट्राइंगल APD, ट्राइंगल APD एंड parallelogram AGHD are on the same base AD and between same parallels AD and GH. So area of triangle APD will be half of area of parallelogram AGHD. Name this as equation number 3. Okay. Similarly, triangle BPC or PBC, triangle PBC and parallelogram BGHC. इस ट्राइंगल PBC और BGHC पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम बेस पर हैं, आर ऑन सेम बेस BC and between same parallels BC and GH. Okay, so area of triangle BPC or PBC is half of area of parallelogram BGHC. Name this as equation number 4. Now add equation number 3 and 4. On adding equation 3 and 4, area of triangle APD plus right hand side के से ऐड होगा और लेफ्ट हैंड साइड के। सो एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC is equals to half of area of parallelogram AGHD
plus half of area of BGHC. Okay. Now see, AGHD plus BGHC, nothing but the parts of this parallelogram ABCD. So they constitute this parallelogram ABCD. Okay, so if we take this half out and in bracket area of AGHD plus area of BGHC. Okay, so the sum of area of these two parts is area of parallelogram ABCD. So in place of this we can write area of ABCD. ओके, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि इन दो पार्ट्स का सम किसके ABCD के एरिया का हाफ है। सेकंड पार्ट में हमने क्या शो किया है कि एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स APD एंड PBC इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ओके, तो दोनों ही क्या हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। अगर हम इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का सम कराते हैं या फिर इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का सम कराते हैं, दोनों ही इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। ओके, मींस राइट हैंड साइड क्या है, दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट वी कैन राइट एरिया ऑफ APD plus area of triangle PBC is equals to area of triangle APB plus area of triangle CPD। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमें यही शो करना था। तो इसमें फर्स्ट पार्ट भी आपका यूज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या शो किया कि इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का सम किसका हाफ है, पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का हाफ है। पहले हमने ये शो किया, फिर फर्स्ट पार्ट का यूज करते हुए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस मच लेफ्ट हैंड साइड, तो वही हमने इक्वेट किया है। ओके, सो सेकेंड पार्ट वी हैव शोन एरिया of triangle APD plus area of triangle PBC is equals to area of APB plus area of triangle CPD. So this is your question number 4. Let's move to the question number 5. Now question number 5 is in figure, and the figure is this: PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on the side BR. Show that first part is area of parallelogram PQRS is equals to area of parallelogram ABRS, and the second part is area of triangle AXS is equals to half of area of parallelogram PQRS। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको दो पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं PQRS एंड ABRS, जिनका आप देख सकते हैं बेस क्या है, सेम है, मीन्स दोनों के बीच में एक साइड कॉमन है, दैट इज कॉमन बेस। ओके, और पैरेललोग्राम ABRS में BR पर एक पॉइंट X है, जब इसको A और S से ज्वाइन कराया तो एक ट्राइंगल मिल रहा है AXS। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या शो करना है कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स मीन्स PQRS का एरिया और पैरेललोग्राम ABRS का एरिया क्या है, इक्वल है। तो वी नो दैट व्हाट, if two parallelograms are on the same base and between the same parallels have equal area also। ओके, दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये थ्योरम अभी 9.1 हमने डिस्कस भी की थी, तो इसी थ्योरम से हम डायरेक्टली इनके एरिया को इक्वल कर सकते हैं। ओके, सो सी सिंस parallelogram PQRS and parallelogram ABRS are on the same base
सेम बेस क्या है इन दोनों का, आर एस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर एस एंड पी बी। ओके, देखिए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस का जो कॉमन बेस है आर एस है। अब इन आर एस के अलावा जो वर्टिसेस है वो इस कॉमन मीन्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। देखिए पी क्यू ए बी ये चारों वर्टिसेस सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। ओके, सिंस these are parallelogram, so opposite sides are parallel, means AB is parallel to RS and PQ is parallel to RS. okay, तो इस बेस के पैरेलल ये लाइन है जिस पर ये सारे वर्टिसेस लाई कर रहे हैं। ओके, सो एनी टू पैरेललोग्राम if are on the same base and between the same parallel lines then their area are equal. okay, so from this we can write what, area of parallelogram PQRS is equals to area of parallelogram ABRS. ओके, दोनों ही पैरेललोग्राम सेम बेस RS पर है और सेम पैरेलल्स के बीच में है, मीन्स RS एंड PB के बीच में है। ओके, इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस। सो फर्स्ट पार्ट आपका शो हो गया। सेकेंड पार्ट व्हाट, एरिया ऑफ ए एक्स एस। अब यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम ए बी आर एस में ए एक्स एस एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जो बेस है मीन्स एक साइड ए एस, वही साइड पैरेललोग्राम ए बी आर एस की भी है, मीन्स कॉमन बेस इसमें क्या हो गया, ए एस हो गया। ओके, और ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है देखिए एक्स, वो कहाँ लाई कर रहा है, बी आर पर, जो कि किसके पैरेलल है, ए एस के पैरेलल है। सो दीज आर द ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस ए एस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए एस एंड बी आर। सो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल will be the half of area of this parallelogram ABRS. okay, so see, since triangle AXS and parallelogram ABRS are on the same base AS and between the same parallels AS and BR. So area of triangle AXS is equals to half of area of पैरेललोग्राम ABRS. ओके, अब सेकेंड पार्ट में हमें शो क्या करना है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल AXS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। PQRS के एरिया का हाफ है। तो देखिए अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या शो किया कि PQRS का एरिया किसकी इक्वल है, पैरेललोग्राम ABRS के एरिया की इक्वल है। तो इस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PQRS। So area of triangle AXS is equals to half of area of parallelogram PQRS. Okay, since area of parallelogram PQRS is equals to area of parallelogram ABRS. So in place of area of ABRS we can write area of PQRS. This we have to show here. Now question number 6 is, a farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS. She took any point A on RS and joined the two points P and Q. In how many parts the field is divided? What are the shapes of these parts
the farmer wants to sow wheat and pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? ओके तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक फार्मर है, उसके पास जो फील्ड है वो किस शेप में है, पैरेललोग्राम शेप में है, PQRS। ओके सो PQRS यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, उसका फील्ड किस शेप में है, पैरेललोग्राम के शेप में है, मीन्स PQRS में। ओके अब साइड RS पर एक पॉइंट A लिया है और उसको P एंड Q से ज्वाइन करा है, देन यू कैन सी APQ इज अ ट्राइंगल। ओके तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि कितने पार्ट्स में फील्ड को डिवाइड कर दिया गया है। जब इस पॉइंट A को RS पे लिया और P और Q से ज्वाइन कराया तो ज्वाइन कराने पर इस फील्ड पैरेललोग्राम फील्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो क्लियरली यू कैन सी हियर देयर आर 3 पार्ट्स एंड द शेप ऑफ दिस 3 पार्ट्स आर ट्राइंगुलर। ओके इन तीनों ही पार्ट्स का शेप क्या है, ट्राइंगुलर। सो यहाँ पर 3 पार्ट्स में इस फील्ड को डिवाइड किया गया है और तीनों ही फील्ड का तीनों ही पार्ट का शेप क्या है, ट्राइंगल है। ओके सो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज field PQRS is divided into 3 parts and 3 parts और ये पार्ट्स कौन से हैं, ट्राइंगल ASP, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ARQ। ओके इन 3 ट्राइंगुलर पार्ट्स में इस फील्ड को डिवाइड किया गया है। शेप क्या है, ट्राइंगुलर है, इट इज़ ऑब्वियस, आपको क्लियरली दिख रहा है इन तीनों पार्ट्स का शेप क्या है, ट्राइंगल है। नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन में कि फार्मर इस फील्ड में पल्सेस और व्हीट को शो करना चाहता है, ठीक है, और शो इस तरीके से करना चाहता है कि इक्वल पार्ट्स पोर्शन में दोनों की क्रॉप हो, व्हीट और पल्सेस की। ओके अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो 3 पार्ट्स हुए हैं इस फील्ड के, लेकिन सेपरेटली पल्सेस और व्हीट को इक्वल पोर्शन में शो करना है, तो कैसे करेंगे। ओके तो देखिए यहाँ पर फील्ड पैरेललोग्राम शेप में है और ये ट्राइंगल APQ है, दोनों ही पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल की एक साइड क्या है, कॉमन है। सो ये क्या हो गई, कॉमन बेस हो गई ट्राइंगल और पैरेललोग्राम PQRS के लिए। और देखिए इसका इस ट्राइंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है A वो किस पर, पैरेलल लाइन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ट्राइंगल APQ एंड पैरेललोग्राम PQRS are on the same base PQ and between the same parallels PQ and RS. So the area of this triangle APQ will be half of area of this parallelogram PQRS. Okay, PQRS. तो देखिए इस ट्राइंगल का जो एरिया है इस पैरेललोग्राम का हाफ है, मीन्स अगर इस ट्राइंगल को हम एक्सक्लूड कर दें तो बचा हुआ रिमेनिंग क्या, ये दोनों ट्राइंगुलर पार्ट्स हैं, मीन्स ये जब हाफ है तो ये किसके इक्वल होगा, इन 2 पार्ट्स के एरिया के सम के इक्वल। ओके क्योंकि इस पूरे पैरेललोग्राम का ये ट्राइंगल क्या है, हाफ है, एरिया कवर कर रहा है, तो जो रिमेनिंग होगा वो इसके इक्वल होगा। ओके सो देखिए क्या करना है, सिंस ट्राइंगल APQ एंड पैरेललोग्राम PQRS are on the same base PQ and between same parallels PQ and RS. So area of this triangle APQ
is half of area of parallelogram PQRS. ओके, ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस PQ पर है और सेम पैरेलल्स के बीच में है, इसलिए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा. ओके, अब APQ अगर दोनों ही साइड, ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं, अगर मैं इस PQRS पैरेललोग्राम के एरिया में से इसको माइनस करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, दोनों साइड ही माइनस कर रही हूँ, एरिया ऑफ PQRS माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. एरिया ऑफ APQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. तो दोनों ही पार्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं. अगर हम सेम क्वांटिटी में से इन दोनों पार्ट्स को माइनस करते हैं तो वो भी इक्वल होंगे. तो एरिया ऑफ PQRS में से इन दोनों को ही हम माइनस कर रहे हैं. देखिए, सो एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ APQ, area of PQRS minus area of this triangle APQ. So remaining will be area of ASP plus area of ARQ. ओके, पूरे इस पैरेललोग्राम के एरिया में से हम इस ट्राइंगल APQ को रिमूव कर रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या है, इन दोनों पार्ट्स के एरिया का सम, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQRS माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. सो इट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. ओके, PQRS के एरिया में से अगर हाफ ऑफ PQRS तो हाफ ही रिमेन होगा. सो देखिए, इसका मतलब हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS मीन्स इस पैरेललोग्राम फील्ड का हाफ क्या है, इन दो पार्ट्स के एरिया का सम. ओके, तो यहाँ से देखिए एरिया ऑफ APQ इज हाफ ऑफ, सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट एरिया ऑफ ASP प्लस एरिया ऑफ ARQ इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ APQ. ओके, तो हमने यहाँ क्या मैथमेटिकली क्या शो किया कि इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है, इन दो पार्ट्स के एरिया के सम के इक्वल है. ठीक है, तो इसका मतलब इस पार्ट में अगर वो व्हीट उगाता है तो रिमेनिंग ये जो दो पार्ट है इस पैरेललोग्राम का हाफ है, तो इन दोनों में पल्सेस शो कर सकता है, या फिर इसमें अगर वो पल्स शो करता है तो इन दोनों पार्ट्स में वो व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है ना, व्हीट यहाँ पर उगा सकता है. सो मीन्स ये दोनों मिलकर क्या है, हाफ पोर्शन बना रहे हैं, और ये ट्राइंगल क्या है, इस पैरेललोग्राम का हाफ है. ठीक है, तो हाफ पार्ट में दोनों चीज़ें व्हीट और पल्सेस, किसी भी पार्ट में व्हीट और पल्स शो की जा सकती है. ओके, so farmer can sow wheat in triangle APB and pulses in triangle ASP and triangle ARQ. ओके, अगर APQ में अगर वो व्हीट शो करता है तो इन दो ट्राइंगल्स में वो क्या पल्स को शो कर सकता है, और अगर व्हीट इन ट्राइंगल ASP एंड ट्राइंगल ARQ देन पल्स इन ट्राइंगल APQ. ओके, दोनों में से, क्योंकि उसको क्या
सेपरेटली एंड इक्वल पोर्शन में इन दो पल्स और वेट को शो करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया कि इस ट्रायंगुलर पीस का एरिया इन दो ट्रायंगुलर पीस के एरिया के सम के इक्वल है। ओके, हमने लास्ट में क्या शो किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। इसका मतलब अगर वेट इसमें उगाते हैं तो पल्स इन दो पीस में उगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में वेट उगाते तो पल्स इसमें, दोनों ही क्या हैं, ये दोनों पार्ट्स मिलकर ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया कवर करते हैं। ठीक है, सो हाफ पोर्शन में दोनों चीज़ें सेपरेटली शो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. So that's all about today's session in which we have discussed question number 4 to question number 6. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next for the theorems of this chapter. Till then, keep watching my channel. Thank you.